بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہمارے دیوتاؤں کی مورتیاں چھپا کر رکھی گئی ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر فلاں چیز رکھی گئی ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ شریف کے اندر کی ایک چیز کے بارے میں کعبہ شریف کے اندر کی ایک چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں، یعنی کہ کعبہ کے اندر کیا چیز رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے بار ہوئی، کس نے کی اور کیسے کی۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا، اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی بہہ گیا تھا۔ طوفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو، اس کے بعد یعنی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہیں۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بیٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے، یعنی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار عالم، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا، اے میرے خدا،
यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू कबीस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज का ऐलान किया। क्या लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार आलम की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना, यहाँ तक के पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों ने भी ये ख्वाहिश हो गई कि वह भी अल्लाह के उस पाक घर की जियारत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को हज करने की तौफीक नसीब फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखता हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद हैं। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए उसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा सा घर ऊंचाई में बड़ी बड़ी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन इस रूए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है और तारीख और इंसानों पर उसका बहुत गहरा असर है। काबा शरीफ मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। उसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और उसका कुल आकार 647 वर्ग फीट में बना हुआ है। उसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाई 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। उन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया के सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये लकड़ी की 3 पिलर बनवाई थी। उनको 1350 साल गुजर चुके हैं। उनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। उनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, उसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई और हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके अपनी नमाज अदा फरमाते और वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बताया था, दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसके एक दरवाजे हैं, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगा हुआ रहता है और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है जिस पर निहायत दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्जा पर्दे लटके हुए होते हैं जिन पर कलिमा तैयबा के अलावा सूरा इमरान आयत नंबर 96 और सूरा बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर हैं। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में हैं, इसलिए उन पर गर्द गुबार नहीं लगती है। इसलिए उन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रहा है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श और सफेद संगे मरमर से बनाया गया है।
काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफ काबा बदला जाता है तो यह ढकना उठा दिया जाता है। फिर काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत तक जाया जाता है। 1357 हिजरी से पहले ये सीढ़ियाँ लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में उन्हें लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ बनाई गई और उनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं, जिनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल है, जबकि 280 किलो सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। यह काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। यह बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगे मरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। उन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रहा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6वीं शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलर हैं। अतर जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन की तरह के लैंप भी हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है और ना ही काबा शरीफ के अंदर कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजे हैं जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 11 से 12 बार हो चुकी है, लेकिन उनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाना काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो, मगर उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था। उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाना काबा को तामीर किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया था, और यह भी पता चल गया होगा कि खाना काबा के अंदर क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अपने तक ही ना रखते हुए अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।